Experiment number 2. Experiment number 2 having title to understand weights and measure involved in dispensing. इसमें हमें weights and measures के बारे में पढ़ना है. कौन से weights हैं, कौन से weights and measure डिवाइड उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है. In last lecture practical we studied about dispensing pharmacy, that is intellectual skill क्या है, motor skill क्या है, और जो इंटेलेक्चुअल स्किल क्यों पढ़ते हैं हम, लेबोरेटरी वर्क क्यों किस लिए ज़रूरी है टू डेवलप इंटेलेक्चुअल स्किल, मोटर स्किल एंड एटीट्यूड, देन लॉजिकल थिंकिंग, ये सब हमने लास्ट प्रैक्टिकल में देखा था. इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 वी हैव टू स्टडी weights and measures. So see proposition 1, weight. What is weight? It is a measure of the gravitational force acting on a body and directly proportional to its mass. क्या है weight? Measure of the gravitational force which is acting on body. जो gravitational force body पे act करता है, that is उसका measure which is directly proportional to its mass. Weight nothing but the depend upon gravitational force and mass. weight किस पे डिपेंड है? gravitational force and mass. See concept structure. weight and measure का क्या structure है? weight and measures classified into two system. One is imperial system and second is metric system. weight and measures are divided into two system, imperial system and metric system. Imperial system again divided into two systems. First is Avoid-Dupuis system and second है Apothecaris system. weight and measures firstly divided into two systems. First is imperial system, second है metric system. And imperial system again divided into two systems, that is Avoid-Dupuis system and second है Apothecaris system. अभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? वेट एंड मेजर्स क्यों पढ़ना है हमें? इंटेलेक्चुअल स्किल हमने देखी थी. अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे? टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड देयर कन्वर्जन. हमें डिफरेंट सिस्टम के मेजरमेंट देखने और उनका कन्वर्जन देखने. तो सी प्रोसीजर स्टेप वाइज. फर्स्ट है Avoid-Dupuis सिस्टम. In this system, pound is the standard unit for weighing and all the measures of mass are derived from the imperial standard. Avoid-Dupuis system में pound जो है वो standard unit है for weighing, और जो बाकी masses और वो derived हुए हैं from imperial system. See the column pound which is also written as LB. second column में है ounce OZ and grain GR. pound को आप LB में भी लिख सकते हैं, ounce को OZ and grain को GR. 1 pound is equals to 16 ounce. 1 pound means 16 ounce, और आपको 16 ounce मीन्स 7000 ग्रेन. मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 1 pound इज इक्वल्स टू 16 ounce और 1 pound इज इक्वल्स टू 7000 ग्रेन, और 16 ounce मीन्स 7000 ग्रेन और 16 ounce मीन्स 1 pound. इन नेक्स्ट कॉलम 1 ounce. अभी पाउंड देखा हमने, 1 pound इज इक्वल्स टू 16 ounce और 7000 grain. 1 ounce means 7000 divided by 16. 1 ounce is equals to 7 divided by 16 means 437.5 grain. 1 ounce means 437.5 grain. Okay. Second है Apothecaris system. This system is also known as
ट्रॉय सिस्टम, एपोथेकेरी सिस्टम ये इम्पीरियल सिस्टम में आता है। इम्पीरियल सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, एक अवॉइड डिपॉजिट सिस्टम और सेकेंड है एपोथेकेरी सिस्टम। अवॉइड डिपॉजिट सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट है पाउंड और एपोथेकेरी सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट है ग्रेन। एंड ऑल अदर weights are derived from the standard weight, that is grain, in apothecary system. This apothecary system also known as Troy system. तो ये आपको सिनॉप्सिस में पूछा जा सकता है। तो सी द टेबल, पाउंड, LB, आउंस, आउंस का यूनिट ऐसा है, सिंबल ड्रैकम। प्रॉपरली सी द सिंबल for each and every weight, scruple and grain, GR. 1 pound is equals to 12 ounce या 1 pound is equals to 96 drachm और 1 pound is equals to 288 scruple और 1 pound is equals to 5760 grain. Okay, in apothecary system. But in अवॉइड डिपॉजिट सिस्टम हमने देखा था 1 pound इज इक्वल्स टू 7000 ग्रेन और यहाँ पे क्या है 1 pound इज इक्वल्स टू 5760 ग्रेन। सी द डिफरेंस। और यहाँ पे अब अवॉइड डिपॉजिट में क्या था 1 pound इज इक्वल्स टू 16 ounce अवॉइड डिपॉजिट में, और एपोथेकेरीज में क्या है 1 pound इज इक्वल्स टू 12 ounce। सेकेंड है 1 ounce इज इक्वल्स टू 8 ड्रैकम और 24 स्क्रपल और 480 ग्रेन। देन नेक्स्ट कॉलम 1 ड्रैकम इज इक्वल्स टू 3 स्क्रपल और 60 ग्रेन। देन 1 स्क्रपल इज इक्वल्स टू 20 ग्रेन। दिस इज द conversion of all the system or unit. Now measurement of capacity in imperial system. The gallon is the standard unit and all other measures of capacity are derived from it. अभी हमने पहले वेट के बारे में पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ वेट, उसमें पाउंड और ग्रेन देखा था। अभी कैपेसिटी, कैपेसिटी इज़ फॉर टू मेज़र लिक्विड मटेरियल, उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है गैलन, एंड जो बाकी के यूनिट्स है और वेट से मेजर्स है वो उसके गैलन से डिराइव्ड हुए। सी द कॉलम 1 गैलन, गैलन विच इज़ डिनोटेड बाय C, पिंट, O, फ्लूइड आउंस का दिया है FL, ये सिंबल है, फ्लूइड ड्रैकम, देन मिनिम यम। 1 गैलन इज इक्वल्स टू 8 पिंट और 1 गैलन इज इक्वल्स टू 160 फ्लूइड आउंस और 1 गैलन इज इक्वल्स टू 1280 फ्लूइड ड्रैकम और 1 गैलन इज इक्वल्स टू 76,800 मिनिम। ये गैलन का कन्वर्जन दिया है बाकी का। देन नेक्स्ट है 1 पिंट इज इक्वल्स टू 20 फ्लूइड आउंस और 1 पिंट इज इक्वल्स टू 160 फ्लूइड ड्रैकम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 20 फ्लूइड आउंस इज इक्वल्स टू 1 पिंट और 20 फ्लूइड आउंस इज इक्वल्स टू 160 ड्रैकम और 9600 मिनिम। देन 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल्स टू 8 फ्लूइड ड्रैकम और 480 मिनिम। देन नेक्स्ट कॉलम में है 1 फ्लूइड ड्रैकम इज इक्वल्स टू 60 मिनिम। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन इम्पीरियल सिस्टम। जो लिक्विड को हमें मेजर करना है हम इस सिस्टम से मेजर कर सकते हैं। गैलन इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी एंड अदर जो है मेजरमेंट से वो गैलन से डिराइव हुए। देन नेक्स्ट पार्ट है वेट एंड मेजर्स का। फर्स्ट सिस्टम देखा हमने, उसमें इम्पीरियल सिस्टम था और नेक्स्ट इसमें है मेट्रिक सिस्टम। द
The metric system is used in the pharmacopoeia and was implemented from 1st April 1964 in pharmacy profession. जो metric system है pharmacopoeia में use होता है, which is implemented from 1st April 1964 हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में. कब से इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1964. किलोग्राम इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट. किलोग्राम है मेट्रिक सिस्टम का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है? किलोग्राम. फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट एंड ऑल अदर मेजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इट. अगर आपको वेट में मेज़र करना है तो किलोग्राम ये स्टैंडर्ड यूनिट है और बाकी के जो यूनिट है किलोग्राम से डिराइव्ड हुए हैं. सी द टेबल. 1 किलोग्राम और 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. आपको तो पता ही, दिस इज कॉमनली यूज्ड बाय अस. सेकेंड है 1 हेक्टोग्राम, दैट इज Hg. यूनिट क्या है हेक्टोग्राम का? Hg. 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स. 1 डेकाग्राम, दैट इज DAG. 1 डेकाग्राम is equals to 10 grams. Then 1 decigram is equals to 0.1 gram. Next है 1 सेंटीग्राम Cg, यूनिट है सेंटीग्राम का, is equals to 0.01 ग्राम. Then 1 मिलीग्राम is equals to 0.001 ग्राम. 1 माइक्रोग्राम Ug. Ug क्या है? माइक्रोग्राम का यूनिट is equals to 0.000001 gram. Then 1 gram is equals to 1000 mg. 1 gram is equals to 1000 mg. See the next table, which is of prefix for fractions and multiples of SI unit. SI unit means इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट. सी यहाँ पे कॉलम दिए, फ्रैक्शन, प्रीफिक्स, सिंबल, मल्टीपल, प्रीफिक्स, सिंबल. फ्रैक्शन के है जो फ्रैक्शन दिए 10⁻⁻1, 10⁻⁻2. इसको प्रीफिक्स क्या है, उसका सिंबल क्या है यहाँ पे दिया है. जो नेगेटिव है वो फर्स्ट कॉलम में है और जो पॉजिटिव पावर है 10⁻⁻, सपोज यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है तो या मल्टीपल में, फ्रैक्शन में माइनस जो पावर आते हैं वो माइनस में. 10⁻⁻1 डेसी, सिंबल क्या है उसका? डेसी का D. यहाँ पे 10⁻1 कुछ नहीं, उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स डेका, दैट इज सिंबल क्या है? DA. 10⁻⁻2 ये माइनस में है मतलब फ्रैक्शन, जो पॉजिटिव में है वो मल्टीपल में आता है. प्रीफिक्स है 10⁻⁻2 का है सेंटी, सिंबल क्या है? C, कैपिटल C. 10⁻2 हेक्टो, H. These are all given in this table. Then measurement of capacity. A liter is the standard unit for measurement. जो इम्पीरियल सिस्टम में था कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या था? गैलन. और मेट्रिक सिस्टम में कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर. सी कन्वर्जन टेबल. द फार्माकोपिया ऑफ इंडिया यूजेस ओनली द मेट्रिक सिस्टम. हमारे जो फार्माकोपिया है इंडियन फार्माकोपिया, वो सिर्फ मेट्रिक सिस्टम का यूज़ करते हैं. Previously, prescriptions were written in imperial system by many physicians. In olden days क्या होता था? जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे वो imperial सिस्टम में लिखते थे. So conversion table given below is used by the pharmacist. अभी हम जो कन्वर्जन टेबल है वो पढ़ेंगे. So in next page there are practical equivalents and उसके वेट मेजर्स है. इसमें मेट्रिक जो सिस्टम है उसको इम्पीरियल सिस्टम में कन्वर्जन दिया है. इसमें
फर्स्ट कॉलम में देखिए 1 किलोग्राम और केजी इज इक्वल्स टू 2.2 LB और अवॉयर. 1 LB means pound. 1 pound अवॉयर इज इक्वल्स टू 454 ग्राम. थर्ड में है 1 ounce अवॉयर इज इक्वल्स टू 28.4 ग्राम. 1 ounce apothecary is equals to 31.1 gram. 1 pound apothecary is equals to 373 gram. और 1 gram is equals to 15.4 gr means grain. 15.4 grain मतलब 1 gram is equal to 15.4 grain. 1 grain मीन्स 64.8 mg. ये हमेशा यूज़ होता है कैलकुलेशन करते वक्त. हमें इसको ये 1 grain इज इक्वल्स टू 64.8 mg ध्यान में रखना है. उसका mg का कन्वर्जन फिर ग्राम में कन्वर्ट करना है. तो 64.8 mg मतलब ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय 1000. तो 0.0648 ग्राम मतलब 1 grain इज इक्वल्स टू 0.0648 ग्राम. ओके. सेकेंड कॉलम में जो प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट्स है और यहाँ पे अभी कैपेसिटी मेजरमेंट जो ग्राम है वो वेट होते हैं उसको केजी ग्राम में हम मेजर करते हैं. जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम कैपेसिटी में मेजर करते हैं, दैट इज ml लीटर. तो 1 ml और 1 milliliter is equals to 16.2 minims. Okay, 16.2 minutes means minim means 1 ml और 1 ml is equals to 16.2 minims. सेकेंड है 1 fluid ounce. 1 fluid ounce means 29.6 ml. हम 1 ounce इज इक्वल्स टू 30 ग्राम और 30 ml कैपेसिटी. तो साइड बाय 29.6 मतलब 30 ml. 29.6 मतलब 30 ml भी ले सकते हैं डायरेक्टली. 1 फ्लूइड आउंस 1 ounce ग्राम वेट में भी होता है. तो हम कैसे लिखेंगे 1 ounce इज इक्वल्स टू 30 ग्राम. तो 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल्स टू फ्लूइड मीन्स लिक्विड वो ml लीटर में आएगा. तो 1 fluid ounce is equals to 29.6 ml. 1 pint is equals to 473 ml. 1 pint is equals to 473 ml. 1 gallon is equals to 3790 ml. ये याद रखो. मोस्टली 1 ग्रेन पूछते हैं. ग्रेन याद रखना. ग्रेन मोस्टली यूज़ होता है ग्रेन टू mg कन्वर्जन और ग्रेन टू ग्राम कन्वर्जन और 1 मिनिम टू ml कन्वर्जन, आउंस टू ml और ग्राम कन्वर्जन. ये मोस्टली यूज़ होता है फॉर्मुलेशन के समय. देन लास्ट कॉलम है कन्वर्जन टेबल फॉर डोमेस्टिक मेजर. जो यूजुअली जो यूज़ होते हैं तो उसका टेबल दिया है कन्वर्जन टेबल. तो डोमेस्टिक मेजर क्या है 1 ड्रॉप, 1 टीस्पून, टेबल स्पून फुल. ओके, ये जो मोस्टली यूज़ होते हैं हमें. 1 ड्रॉप इज इक्वल्स टू 0.06 ml. आपको पता होना चाहिए 1 ड्रॉप में कितना ml होता है. तो 1 ड्रॉप इज इक्वल्स टू 0.06 ml. तो 0.06 ml मतलब आपको पूछा जाए हाउ मच 0.06 ml मीन्स हाउ मच मिनिम. तो 1 मिनिम. देन 1 teaspoonful means 4 ml और 1 fluid drachm. 1 dessert spoonful means 8 ml और 2 fluid drachm. 1 tablespoonful means 15 ml और 4 fluid drachm. 1 fluid drachm means 1 drachm means 4 ml.
1 ounce मीन्स 30 ml। ड्रैकम और आउंस में बहुत बार पूछा जाता है 1 ड्रैकम इज इक्वल्स टू हाउ मच ml। तो 1 ड्रैकम इज इक्वल्स टू 4 ml एंड 1 ounce इज इक्वल्स टू 30 ml। तो 2 टेबलस्पून फुल दैट इज 30 ml। 30 ml में मतलब कितना फ्लूइड आउंस हो गया, वो 1 फ्लूइड आउंस। 1 वाइन ग्लास फुल दैट इज 60 ml। आउंस में कैसे होगा, 2 फ्लूइड आउंस। 1 टी कप फुल, 1 टी कप फुल, ये जो है टेबल स्पून फुल, डेजर्ट स्पून फुल, तो ये डोमेस्टिक मेजर है। तो 1 टी कप फुल इज इक्वल्स टू 120 ml। आउंस में है 4 फ्लूइड आउंस। लास्ट है 1 टम्बलर फुल इज इक्वल्स टू 240 ml और 8 फ्लूइड आउंस। तो ये आपको मोस्टली हमेशा यूज में होता है, तो ठीक से प्रॉपरली याद रखिए। देन रिजल्ट दिया है, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ वेट एंड मेजर। तो आपको ये कन्वर्जन समझ में आया होगा, कैसे 1 ड्रैकम मतलब कितना ml होता है, 1 ounce मतलब कितना, उसका यूनिट क्या है, 1 ग्रेन्स में हाउ मच mg, ये सब ध्यान में रखिए। 1 मिनी मीन्स कितना ml होता है, 1 ड्रॉप म्हणजे किती होतं हे लक्षात ठेवायचं प्रत्येकाला। तो नीचे है क्वेश्चन, उसका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू बी अलॉटेड बाय टीचर। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें से आपको स्पेसिफिक जो टीचर ने अलॉटेड किए उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेट, आपको डिफाइन करना है वेट। सेकेंड है नेम 2 टाइप्स ऑफ इम्पेरियल सिस्टम। 2 टाइप के हमने अभी जो पढ़ा है इम्पेरियल सिस्टम कौन से, वो आपको लिखनी है। थर्ड है 1 ड्रॉप, मैंने बोला था अभी ऐसे कन्वर्जन पूछते हैं, 1 ड्रॉप इज इक्वल्स टू हाउ मच ml। फोर्थ है व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर अवॉइड्यूपॉइस। हमने स्टार्टिंग में देखा था स्टैंडर्ड यूनिट अवॉइड्यूपॉइस का क्या है, मेट्रिक सिस्टम का क्या है, अपोथेकेरिस का क्या है। तो आपको लिखना है व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर अवॉइड्यूपॉइस सिस्टम। फिफ्थ है व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेट्रिक सिस्टम। और लास्ट से 6th है 1 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मच mg। ओके, ठीक है। 7 क्वेश्चन है 1 गैलन ऑफ वाटर विल मेक हाउ मेनी पिंट्स। तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन लिखना है 1 गैलन ऑफ वाटर मतलब 1 गैलन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पिंट्स, ये कन्वर्जन का आंसर लिखना है। हाउ सेकेंड है 8 नंबर, हाउ मेनी मिनिम्स विल मेक 100 ml, मतलब 100 ml मतलब कितने मिनिम्स होता है। यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा करके पूछा है, हाउ मेनी मिनिम्स विल मेक 100 ml, मतलब आपको सिंपली 100 ml इज इक्वल्स टू हाउ मच मिनिम, इतना लिखना है आंसर। 9th है विच डोमेस्टिक मेजर्स आर यूजुअली रिकमेंडेड फॉर डोसेज। जो डोमेस्टिक मेजर्स है तो कौन से यूज़ किए जाते हैं डोसेज के लिए, टेबल स्पून फुल, टी स्पून फुल, ये जो डोमेस्टिक मेजर है कौन से यूज़ किए जाते हैं। व्हाट इज लास्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम वेएबल क्वांटिटी ऑफ डिस्पेंसिंग बैलेंस। मिनिमम क्वांटिटी कौन सी है डिस्पेंसिंग बैलेंस की, वो लिखनी। ओके, तो ये हुआ हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट।